Morning, बच्चों. Good morning, all of you. So, good morning. Let's start on a positive note, right? And then today we are going to discuss the topic geometric isomerism. So, geometric isomerism, this is zero lecture. Basic introduction, right? What is geometric isomerism and all? So, this is the topic we are going to start off. And let us start bang on. The point is all doubly bonded C double bond C compounds, when they are appropriately substituted, give rise to geometric isomerism, loud and clear. So C double bond C, this shows geometric isomerism. C single bond C does not, because carbon-carbon free rotation is allowed. And C triple bond C also, they don't show geometric isomerism. Only C double bond C alkenes show geometric isomerism, because the rotation around carbon-carbon bond is restricted rotation. Let me be very, very clear. It is because of a restricted rotation around C double bond C. Alkenes show geometric isomerism. Point number two, alkenes have to be appropriately substituted. What do I mean by saying appropriately substituted? It cannot have AA type of AA types of substituent present on the same carbon. What do I mean? I mean that मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन है यहाँ पे, उस अनसैचुरेटेड कार्बन के दोनों ग्रुप्स का नेचर जो है सेम नहीं होना चाहिए. सेम नेचर ऑफ ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स, नेचर इज सेम नेचर ऑफ ग्रुप्स, और यू कैन से सेम ग्रुप्स. इसको और अनकॉम्प्लिकेट करें, सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए. सो इस टाइप के कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे. So for an alkene to show geometric isomerism, one thing is very clear, that the groups available on the unsaturated carbon have to be chemically distinct. So PQ, this is the basic precondition, right? So double bond होने के अलावा इन दोनों ग्रुप्स का नेचर अलग अलग होना चाहिए. दोनों ग्रुप को अलग अलग होना चाहिए. लाउड एंड क्लियर. सो लेट्स मूव क्विकली नाउ. द पॉइंट इज C double bond C, and say you have AB, right? And then AB. Both the groups are different. They are, one is A, another is B. So this is an appropriate compound which can show geometric isomerism. Point number next. Point number next is, because both the A's are on the same side of the double bond, so such an isomer is said to be a cis isomer. Loud and clear. One more thing, one more way of looking into this is, since A's are at an angle of 90 degree with respect to each other, this isomer is said to be a cis isomer. 90 degree is important because this concept you can use in inorganic chemistry also. And when these two A's are, diametrically opposite, AB, and you can have AB like this, when they are diametrically opposite, the angle between the two is 180 degrees. And then again, it is said to be a geometrically active compound, and this isomer in particular is known as a trans isomer. Loud and clear. So when identical groups are 180 degree apart, it is a trans isomer. When they are 90 degree apart, it is a cis isomer. I'm talking about their planes. Angle is angle between their planes. So this is showing cis isomerism with respect to A's, or maybe with respect to B also. Understand? Even this is showing trans isomerism with respect to A's and with respect to B's both. तुम्हारे पास एक कैटेगरी और भी हो सकती है बेटा यहाँ पे, अगर तुम देखो ध्यान से, C double bond C and AB, and what else? PA. Understand? So now this is trans isomer, trans with respect to A, and then
C double bond C and A's, and they are at schizoid conformation, schizoid positions, maybe B and P. So this is a trans isomer. This is a cis isomer, not trans. Cis with respect to A, right? So this is cis, this is a trans isomer. Clear? ये बात भी समझ आ रही है आपके? क्विकली मूव कर जाइए। अब आप एक दो छोटे मोटे एग्जांपल लेंगे। अभी हमने इससे ही स्टार्ट किया है और इसी के बारे में बातचीत करेंगे। सो लेट्स मूव क्विकली इनटू सम मोर डिटेल्स। सो अभी आप ये देखिए, आपके पास मैंने एक कंपाउंड दिया है यहाँ पे, C double bond C, and what is there is a methyl, and then there is a hydrogen, and then there is a methyl, and then there is one hydrogen out here, right? And alternate arrangement could have been the two methyls are diametrically apart, something like this. The planes are diametrically apart, so it can be something like this, right? So जाहिर सी बात है बेटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसको आप क्या बोलते हैं? You call this cis isomer, right? और अगले को आप क्या बोलेंगे? Because they are diametrically opposite apart, so this is a trans isomer. लिखेंगे loud and clear। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? अब बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन करूंगा मैं आपके साथ। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो, दोबारा ड्रॉ करते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगा। C double bond C and CH3 and what else? Hydrogen and what else? CH3 and what else? Hydrogen। मैंने रीड्रॉ किया cis आइसोमर को, डिफरेंट कलर से यूज करूंगा इनको। मेरा तुमसे पूछना ये है बेटा कि यहाँ पर जो डाइपोल बन रहा है, दिस इज राइट फ्रॉम CH3 to this carbon. Why CH3 to this carbon? Because this carbon is sp3 and this carbon is sp2 hybridized, right? और परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ 33% है और परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ 25% है। मोर इज द एस कैरेक्टर, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज वेल। सो this carbon, the sp2 hybridized carbon supposedly is more electronegative। जब ये ज्यादा electronegative है तो dipole का direction is always from less to more electronegative atom। So this dipole and this dipole, right? And they are not mutually cancelling out each other. So this molecule has a definite non-zero dipole moment. We all agree, right? And अगर आप यहीं पर बेटा ट्रांस आइसोमर की बात करेंगे तो ट्रांस आइसोमर में क्या दिखेगा तुमको? ट्रांस आइसोमर बना लो पहले जरा जल्दी से। C double bond C and you have a methyl और एक और methyl and they are at trans position with respect to each other, and what you can see is this dipole is kind of completely compensated by the dipole which is 180 degree away. So mu net dipole moment is definitely zero. So if I ask you cis और trans isomer में किसका dipole moment ज्यादा है, तो बिंदास आंसर क्या बनाएंगे आप? which is having larger dipole moment। so आप loud and clear आंसर करेंगे trans का dipole moment cis की तुलना में कम होता है। so ये एक clear cut आंसर हो गया। तो building upon this, ये अगर आपने quickly note down कर लिया, everybody noted? If you have noted this down, let's move quickly. So इसी example को दोबारा pick कीजिए बेटा। C double bond C and you have a CH3 and you have a CH3 and then you have a hydrogen and then you have a hydrogen and then you have a C double bond C and then you have a CH3 and then you have a hydrogen and then you have a hydrogen and then you have a CH3, right? Clear? और इन दोनों में ये जाहिर सी बात है, ये एक सिस आइसोमर है और ये एक ट्रांस आइसोमर है। दिस इज अ ट्रांस आइसोमर। अंडरस्टैंड? फेयर इनफ, फाइन। अभी आपने तुरंत डिसाइड किया किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है बेटा? बहुत ऑर्डिनरी बातें कर रहा हूं मैं। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है? cis is having more dipole moment. This dipole moment is not zero mostly and its dipole moment is zero. I am talking about this particular compound. This is trans-butene. Correct me if I am wrong. Trans-butene.
2 in. So we are very particularly talking about this molecule, trans-2 in का dipole moment 0 है. अब अगर डाइपोल मोमेंट आपने डिसाइड कर लिया, किसकी पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी बच्चे, पोलैरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, सो पोलैरिटी सिस आइसोमर का ज्यादा हो जाएगा, ये भी क्लियर दिखाएंगे. जब पोलैरिटी इसकी ज्यादा हो गई तो अब मुझे एक बात ये बताओ, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा. आप तुमको पता है बॉइलिंग पॉइंट, मैं साइड में लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, and intermolecular forces is directly proportional to polarity of the molecule. More is the polarity, more is the dipole-dipole interaction. Let me repeat, more is the polarity. जब polarity बढ़ेगी तो dipole-dipole interaction बढ़ेगा, तो intermolecular force बढ़ जाएगा, तो boiling point बढ़ जाएगा. तो इस करके अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप क्लियरली कैटेगरिकल क्वांटाइज डिस्क्रीट आंसर करेंगे, सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अब जब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ किसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बेटा, वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी. सो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो जो ज्यादा पोलर होगा वही ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा. आई सेड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, हाईली पोलर, वन ऑफ द मोस्ट पोलर सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत ही हाईली पोलर सॉल्वेंट है ये. इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इज अराउंड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, इज अराउंड 82. तो वेरी वेरी एक्सट्रीमली हाईली पोलर सॉल्वेंट. तो जो पोलर सॉल्वेंट है जाहिर सी बात है वो पोलर कंपाउंड को ज्यादा अच्छा सॉल्वेट कर पाएगा. तो सिस आइसोमर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्रांस आइसोमर. सो वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई. अब अगला एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ मेल्टिंग पॉइंट का. तो मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व्स, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज. अंडरस्टैंड एवरी चाइल्ड, मेरी बात समझ में आ रही है? मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड का लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जब सॉलिड की बात करेंगे तो लैटिस स्ट्रक्चर आ जाएगा, सॉलिड हैज अ डेफिनेट लैटिस स्ट्रक्चर. सो अब तुम एक बात ये देखो कि यहाँ पर सिस के केस में जब दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है तो इनके आपस में कुछ स्टेरिकली हिंडर्ड होने की गुंजाइश है. तो जब ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है कम सिमेट्रिक होगा, तो ये लेस स्टेबल होगा. जब ये लेस स्टेबल होगा बेटा, जब इसका लैटिस लेस स्टेबल हो जाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना ट्रांस की तुलना में. ट्रांस में क्या है, दोनों मिथाइल डायमेट्रिकली अपार्ट हैं, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस की पॉसिबिलिटी कम है. किसके रिस्पेक्ट में कम है, सिस के रिस्पेक्ट में कम है, क्योंकि मिथाइल डायमेट्रिकली अपोजिट है, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो ये एक स्टेबल लैटिस देगा. जब इसका लैटिस स्टेबल होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा. तो इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात हो गई. सो सिस और ट्रांस आइसोमर का डिस्टिंक्शन किया हम लोगों ने विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन फिजिकल पैरामीटर्स, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी. 0 लेक्चर है ये, मैंने फंडामेंटल बातें कवर की हैं यहाँ पे. क्विकली आप इसको देख जाइए, फटाफट पास रिवाइज कर लीजिए एंड वी विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर. सो ये इतनी बातों को क्विकली आप तैयार कर लीजिए और अगले टॉपिक की तरफ क्विकली मूव करेंगे. टॉपिक मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को मैंने 3-4 सेगमेंट में डिवाइड किया है, तो एक एक करके नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की तरफ मूव करेंगे. मैं एक लेवल ऊपर रखूंगा अगली क्लास में इसका जो कंटेंट है. तो लेट्स मूव क्विकली राइट नाउ.